Good morning, students. Welcome back. We are doing our chapter Nelson Mandela, written by Nelson Mandela himself. It's an autobiography. In this chapter, Nelson Mandela, he talks about the victory of Nelson Mandela, and we have read this part that in this function you can say that in this occasion his wife, his daughter Zenani accompanied him, and Mr. De Klerk was the first one and second deputy president, and he came to the podium and he pledged to obey the uphold of the constitution, and he devoted himself to well-being of republic and its people. He started speech by saying that today all of us do our presence here confer the glory and hope to newborn liberty out of experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. So out of this experience, what experience which they people have to bear, that is human disaster, and it lasted too long, and it must be born a society of which all humanity will be proud. So now they people together pledge that now they will make a society where all humanity will be प्राउड, जहाँ मानवता को बहुत प्राउड फील होगा. वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host of the nations of the world on our own soil. So we who were outlaws, what does the narrator want to say here? The author want to say that we means the all people together, that वी हु वर आउटलॉज. अब यहाँ पर स्पेसिफिकली अपने ब्लैक पीपल को मेंशन कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, दैट वो ब्लैक पीपल बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड पॉलिसी आपको बताया है जो रंग भेद की नीति होती थी, दैट ब्लैक एंड वाइट पीपल वाली. सो मैनी कंट्री हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका, क्योंकि यहाँ पर ये अपार्थाइड सिस्टम था, ब्लैक एंड वाइट वाला सिस्टम था साउथ अफ्रीका में. सो बहुत सी कंट्रीज़ ने उनके साथ लिंक जो था अपना तोड़ दिया था. नाउ अब वो कह रहे हैं कि अब हम सब अपने को बहुत प्राउड फील कर रहे हैं. नाउ इट्स अ प्रिविलेज होता है अपने लिए बहुत बड़े सम्मान की बात की वो होस्ट कर रहे हैं सारे वर्ल्ड के सब नेशन को ऑन दी ओन सॉइल, मीन्स अपनी धरती पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर. ऐसा पहली बार हुआ है और इट्स अ रेयर प्रिविलेज फॉर देम. We thank all of our distinguished international guests. So they people thanking all of them, all the distinguished guests. So we here means he and his party. So African National Congress Party, that this party, if अपनी पार्टी के साथ ही अब ही सेज दैट वी ऑल टुगेदर थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट जो बाहर से भी आए हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आर country of what is after all a common victory for justice, because it's their common victory for justice, for peace, for human dignity. अब उनकी क्योंकि ये कॉमन विक्ट्री थी, सबकी जीत थी, किस लिए? जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवता के सम्मान के लिए, मानव के सम्मान के लिए, स्पेशली फॉर द ब्लैक पीपल, उनके सम्मान की बात की गई है. Now we have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So we have at last. Now at last means इतने टाइम के स्ट्रगल के बाद, as we know that he spent 30 years in jail for the people, for betterment of his people. वो 30 साल तक जेल में रहे थे और उसके बाद जब उन्होंने डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए उसमें वो जीते और पहले साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, ब्लैक प्रेसिडेंट बने. इससे पहले हमेशा वाइट पीपल की ही सुप्रीमेसी थी और उन्हीं का ही वहाँ पर रूल था. सो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन. सो ये पहली बार किसी को पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिली, मतलब राजनीति में जो था पहली बार किसी ब्लैक पर्सन को वहाँ पर मौका मिला. सो ये उनकी फ्रीडम थी, किस चीज़ से? जो उनको रिस्ट्रिक्शंस थे, रिस्ट्रिक्टेड थे ना ब्लैक पीपल की, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, वो नहीं बन सकते, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था. लेकिन जब कंट्री के प्रेसिडेंट ब्लैक बन गए हैं तो
अपार्थिड सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने, क्योंकि इसके लिए बहुत लड़े, वो बहुत स्ट्रगल किया, 30 साल उन्होंने जेल में बिताए. सो दिस इज़ ऑल व्हाट ही डिड. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. So now again he forced. Why did he say never, never and never? Because उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रगल फेस किया है इस अपार्थिड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए. दैट्स वाई ही सेज नेवर, नेवर एंड नेवर, कि कभी भी नहीं, दोबारा तो ऐसा कभी भी ना हो कि हमारी ये ब्यूटीफुल धरती जो है विल एक्सपीरियंस द ऑपरेशन. ऑपरेशन होता है मतलब ये जो हीन भावना है ऑफ वन बाय अनदर, एक दूसरे के साथ जो ये व्यवहार है, ठीक है. सो कभी भी ये फील ना करें. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. एंड इस धरती में ये जो आज का जो सन है वो इतना ग्लोरियस तो कभी भी नहीं, इतना चमकीला, इतना ग्लोरियस तो सन भी कभी राइज नहीं हुआ होगा. शैल नेवर सेट, और कभी ना होगा, फॉर द ह्यूमन अचीवमेंट, की मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट है फॉर द पीपल of South Africa, for the black people. So let freedom reign. Now they all are rejoicing, they are enjoying, and he says let freedom reign. Reign means राज करने दो, मीन्स अब इनकी जो फ्रीडम है उसको रेन करने दो, उसको वहाँ पर अब रूल करने दो. फ्रीडम मतलब हर किसी को फ्रीडम हो. फ्रीडम किस चीज़ की? कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो. हर व्यक्ति जिसके अंदर भी टैलेंट है उसको उसकी टैलेंट के लिए कभी भी उसको दबाया ना जाए, उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिले. गॉड ब्लेस अफ्रीका. ही एंडेड हिज स्पीच बाय सेइंग दिस. Here are the oral comprehension check questions. We'll discuss them all. And you have to do this in your notebook. Okay, these 5 questions. So what did the ceremony take place? Where does the ceremony take place? It took place in that साउथ अफ्रीका. ओके, साउथ अफ्रीका के कहाँ पर? यहाँ पर हमने स्टेडियम का नाम किया है, दैट इज इट इज़ गिवन देयर. चेक योर बुक, दैट इज एमपी थिएटर. ओके, नेक्स्ट इज आपने इंडिया का कोई बताना है इसमें प्लीज़. ठीक है. नेक्स्ट, कैन यू से हाउ 10 May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? यस, बिकॉज ये किस चीज़ का? आज उनकी विक्ट्री का दिन था. सो दैट्स वाई. ऐसे ऑटम जो सीज़न है इट इज़ द सीज़न ऑफ सैडनेस, क्योंकि सारे पत्ते झड़ जाते हैं. बट दिस टाइम टुडे साउथ अफ्रीका के लिए बहुत खुशी का दिन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग फ्रीडम. एट द बिगिनिंग ऑफ स्पीच मंडेला नेशंस एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. व्हाट डज इट मीन? क्या डिजास्टर था? दैट वाज डिस्क्रिमिनेशन. उनका आपस में जो ब्लैक पीपल के साथ जो अपार्थिड सिस्टम था उसको लेकर उन्होंने कहा है. what is the glorious achievement? that is the ended of the system. अपार्थिड सिस्टम को ख़त्म करना ये इनका glorious achievement था. He speaks of at the end. Okay, what does Mandela thank international leaders for coming to the land? उन्होंने फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका की धरती पर होस्ट किया, क्योंकि इससे पहले पीपल दे डू नॉट कम टू साउथ अफ्रीका ड्यू टू दैट अपार्थिड सिस्टम. सो अब देश विदेश से जो इंटरनेशनल लीडर्स आए थे तो नेशनल मंडेला थैंक देम ऑल. What ideas does he set out for the future of South Africa? He is setting the future that it will reign so long and it shall never experience such oppression and it will rise and rise. Okay. Next. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, troop carrier rose in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of
Impala jets left a smoke trail of the black and red, green and blue and gold of the new South African flag. So now he says a few moments later we all lifted our eyes. अब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि अब जब वो स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने क्या किया, अपनी आइज़ को लिफ्ट किया और एज अ स्पेक्टिकुलर एरे. स्पेक्टिकल एरे इज़ एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल, अट्रैक्टिव. जैसे हमने देखा है जब इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन होता है तो उसमें एरोप्लेन्स जो है कलरफुल वो स्मोक को उड़ाते हैं टू सेलिब्रेट इट. तो द सेम वे देयर वाज अ स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर. दे आर रोरिंग इन परफेक्ट फॉर्मेशन. अब एक दूसरे का मीन्स वहाँ पर फॉर्मेशन बन रही है और वो ऊपर हवा में उड़ रही हैं ओवर दी यूनियन बिल्डिंग्स. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट पोजिशन. अब ये सिर्फ एक पिन पॉइंट पोजीशन नहीं था, मतलब कि सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं था कि मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोस्ट्रेशन. मिलिट्री फोर्स का सिर्फ एक वो सिर्फ यही नहीं दिखा रहे कि वहाँ पर वो अपना पिन पॉइंट कर रहे हैं, प्रिसीजन को डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक डेमोस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. बल्कि वो क्या डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, किस चीज़ का प्रदर्शन था ये, मिलिट्री की लॉयल्टी का. किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए. मीन्स वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र हो गया है. इससे पहले तो वहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम था, बट नाउ वहाँ पर अब डेमोक्रेसी है. तो टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. सो ये जो डिस्प्ले था ये अब क्या था, मिलिट्री की लॉयल्टी दिखाने का था, जो डेमोक्रेसी के लिए अपनी जो ईमानदारी, जो अपनी वफादारी दिखा रहे थे अपनी नई गवर्नमेंट के लिए, जो फ्रीली एंड फेयरली जिसका इलेक्शन हुआ, जिसमें कोई भी क्या नहीं हुआ, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, फेयर वे से इलेक्शन हुआ. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस. अब कुछ मोमेंट्स बिफोर जहाँ पर हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका और डिफेंस फोर्स की जो पुलिस थी उन सब ने क्या किया, अब यहाँ पर उन सब ने शो किया विद रिबन्स क्या एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय. दे ऑल सल्यूटेड मी. अब जितने भी ये सब लोग थे साउथ अफ्रीका जनरल, जो इससे पहले शायद इनको जानते भी नहीं होंगे ढंग से, नाउ टुडे दे ऑल सल्यूटेड हिम, प्लेज्ड देयर लॉयल्टी एंड दे ऑल प्लेज्ड, क्योंकि पूरी की पूरी गवर्नमेंट जब वहाँ पर सिस्टम थे तो सब के सब जो मेंबर्स थे दे प्लेज्ड देयर लॉयल्टी. एंड वहाँ पर उन्होंने भी अपने अपनी पोस्ट के लिए अब शपथ ली. ओके, they would not have saluted but arrested me. So I was not mindful of the fact that not so many years before. अब ये वही लोग थे. He says that he was not unmindful of the fact. अब वो unmindful क्यों नहीं था, conscious और aware of. So he was not mindful or means he was not aware of the fact that कि बहुत सालों पहले they would not have saluted but arrested me. So they people have not saluted him or arrested him. they people that time, अब जब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे उन्होंने क्या किया था, उनको अरेस्ट किया था, बट फिर भी आज वो उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं थे कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ साल पहले इनको अरेस्ट किया था. दैट finally a chevron of the Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. So finally a chevron of Impala. Chevron is a pattern in the shape of a V. So अब वहाँ पर एक पैटर्न था जो V शेप पैटर्न था, वहाँ पर इट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के जो फ्लैग्स थे. अब उन्होंने वो लाइंस थ्रो की, मतलब अपने एरोप्लेन से उड़ाते हुए डिज़ाइन पैटर्न बनाते हुए जा रहे थे टू सेलिब्रेट द विक्ट्री. द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स and the vision of the white singing Cochise Kiri Africa Cochise Sikelel Africa and black singing Die Stem, the old anthem of the republic. So the day was symbolized for him, for Nelson Mandela. They were playing two national anthem, क्योंकि white people जो था उनका national anthem अलग था and black people का national anthem अलग था, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. सो दैट डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर हिम कि उन लोगों में इतना ज़्यादा, साउथ अफ्रीका में इतना ज़्यादा
पार्टी सिस्टम था कि नेशनल वाइट पीपल का नेशनल एंथम अलग था और ब्लैक पीपल नेशनल एंथम भी अलग था, वो अलग अलग सिंगर नेशनल एंथम सिंग कर रहे थे. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइट एंड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट. अब ऑल्दो दैट डे, अब उस दिन नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द नेशनल एंथम. सो अब वो सारे मिलकर एक नेशनल एंथम गा रहे हैं तो उन्हें एक दूसरे के लिरिक्स भी नहीं पता थे, फिर भी वो अब मिलकर गा रहे थे. दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट बिकॉज अब थोड़े टाइम बाद दे विल न्यू दीज वर्ड्स बाय हार्ट. उनको अब अपने दिल से वो याद हो जाएंगे बिकॉज उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo Boer Wars, before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. So on that day of the inauguration, that was the inauguration day, I was overwhelmed. Now he was very overwhelmed होता है खुशी से फूले ना समाना, जिसे बोलते हैं overwhelmed, बहुत ज़्यादा खुश होना. Why? With a sense of history, because नेल्सन मंडेला हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री. जो अभी तक इस धरती में नहीं हुआ था वो पहली बार हुआ इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी. एंड कब बने थे वो 2004 और 5 जब वो प्रेसिडेंट बने थे. दैट इज़ 2005. Okay. So this was the first time in the history. A few years after the bitter Anglo-Boer war, so after a few years, bitter Anglo-Boer war and before my own birth, उनके birth से भी पहले, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. उनके birth से भी पहले अब उनके पैचेस कर दिए जाते थे और पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उनके एक पैच अप कर दिया जाता था. इरेक्टेड अ सिस्टम, एंड उन्होंने एक सिस्टम इरेक्ट किया, एक सिस्टम बना दिया था गवर्नमेंट ने जो रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल होता था, कि डार्क स्किन पीपल के साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेशन होता था, उनको बिल्कुल बहुत ही घृणा भाव से देखा जाता था. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. And उन्होंने क्या स्ट्रक्चर क्रिएट किया था कि ये जो उनकी लैंड के जो ये ब्लैक पीपल हैं, दे आर द वन ऑफ द हार्शेस्ट, सबसे हार्श एंड इनह्यूमेन, सबसे ज़्यादा मानवता नहीं होती जिनमें, इनह्यूमन है, एंड सोसाइटीज़ हैं. मतलब ये जो ब्लैक पीपल की सोसाइटी है सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट, सबसे ज़्यादा बेकार, इनह्यूमन, अमानवीय सोसाइटी है पूरे वर्ल्ड की. उनके अपनी कंट्री में उन लोगों के साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था. नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन. सो नाउ अब नरेटर सेज, द ऑथर सेज दैट इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड है मीन्स माई 8th डेकेड एज अ मैन, और उनका 8th डेकेड एज अ मैन, मतलब एक आदमी के रूप में वो 8th डेकेड हो गए हैं. डेकेड में डेका मीन्स 10 years, सो ये 8th डेकेड है. दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. सो दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, अब पूरा का पूरा सिस्टम ये टर्न हो चुका है, चेंज हो चुका है फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल. एंड इसने लोगों के राइट्स, अधिकार और उनकी स्वतंत्रता जो है सब लोगों की, उनको वापस उनको मिल गई, रिप्लेस कर दी है जो उनके साथ बुरा व्यवहार होता था, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन. तो उनके स्किन कलर से रिगार्डलेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब उनको पूरा का पूरा चेंज कर दिया है. ओके, सो that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people.
People whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day as I have on so many other days. So that day, author says, Mandela says कि had come about through the unimaginable sacrifices. और वो दिन उन लोगों के अकल्पनीय जो सेक्रीफाइसेस थे और थाउजेंड्स ऑफ मेरी तरह के जो लोग थे उनके जो सेक्रीफाइसेस थे, उन्होंने अपने लाइफ के इतने सेक्रीफाइसेस सब कुछ होते हुए भी उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि वो गोरे लोगों के साथ बैठ नहीं सकते, अगर वो खड़े हैं कहीं पर ट्रेन में तो उन्हें सीट देनी है पहले, उनके साथ नहीं बैठना है, उनके साथ कुछ नहीं करना है. सो दिस इज़ ऑल व्हाट हैपेंड. So people whose suffering and the courage can never be counted or repaid. So these suffering and the courage, it can never ever be counted. कि कभी उसको तो वो चाहे भी तो कभी उसे काउंट नहीं कर सकते, और वो जो सफरिंग उन्होंने फेस की है उसको कभी भी कोई रीपे नहीं कर सकता कि इतना ज़्यादा जो कष्ट उन्होंने भोगा उस कष्ट को कभी भी कम नहीं किया सकता, उसका कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता. आई फेल दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज. सो ही फेल दैट डे that I have on so many others days. So he felt the same pain that he had on the other days, that I simply the sum of all those African patriots, and I was simply the sum of all those. And he says that वो क्योंकि उन सब के रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ द अदर्स अफ्रीकन पैट्रियट्स, जो अफ्रीका में पैट्रियट्स देशभक्त थे, who had gone before me, जो उनके सामने चले गए. दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड. तो उनसे पहले भी जो कई लोग थे उन्होंने इसके लिए सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ, एंड दे हैव नाउ गॉन. लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी. सो दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन अब वो ख़त्म हो चुकी है मीन्स, क्योंकि अब अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म हो गया है. सो दैट रो हैज़ एंडेड एंड ही सेज दैट नाउ आई बिगेन अगेन विद मी. अब नाउ बिगेन अगेन विद मी, अब उनकी लाइन जो थी तो शुरू हो गई है अगेन. आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम. तो उनके साथ जो उनसे पहले के कई लोग थे जिन्होंने पेन को इस जब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, तो ही सेज दैट उनको वो थैंक नहीं कर पाए बिकॉज दे पीपल हैव गॉन बिफोर दिस सिस्टम. अब उनके क्योंकि वो प्रेसिडेंट बाद में बने हैं तो एज ए प्रेसिडेंट ही इज़ थैंकिंग देम ऑल, बट दोज हु हैव गॉन, जिनकी डेथ हो गई है, दोज पीपल दे हैव गॉन, उन्होंने स्ट्रगल करते करते अपनी जान गंवाई है. दे पीपल ही कैन नेवर एवर थैंक. दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैज़ रॉट. रॉट होता है दैट ओल्ड फैशन फॉर्मल वर्ड मीन्स डन. सो वो कभी भी नहीं जान पाए कि उनकी सेक्रीफाइस से उन्हें कितनी बड़ी अचीवमेंट मिली है. So we'll cover up to this only and do these questions which we have covered till now.